Hello students, now today in this video we will discuss the next part of chapter number 5. So today's first topic is acceleration of body sliding down a rough inclined plane. Means when a body on an inclined plane sliding down, what is its acceleration? Means जब किसी बॉडी को किसी inclined plane पे रखेंगे, क्लियर, और उस बॉडी में क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी व्हेन स्लाइडिंग डाउन, कि जब बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी. So first we will draw a diagram, then after diagram we will discuss in detail. So first of all we say that this is a inclined plane which make an angle theta with horizontal. ये आपका कोई inclined plane है, क्लियर, जिसने horizontal के साथ एंगल जो बनाया वो थीटा बनाया है. We say that कि this is a body, ये कोई बॉडी है, क्लियर, this is a body having mass m, its mass is m. Clear? So if its mass is m, we know that its weight, that is mg, acting downward. ये आपका जो mg है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा. क्लियर? In the previous video we also discussed that कि if mg acting in downward direction, then its normal reaction acting in the upward direction. This we have discussed already. और आपको ये भी बताया गया था कि हमने इसको सीधा के लिए because it is on the inclined plane. Clear? Now we know that after that we will resolve this mg into two component. So this is first component and this is second component which is along the surface. Clear? And we know that if this angle is theta, this angle is also theta, which we have done in previously. मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसके पैरेलल होगी. ये थीटा है तो ये थीटा है, ये पूरा एंगल 90 है. इस तरह से आपको हमने समझाया था, एक बार बाद में डिस्कस कर लेंगे. So this component become mg cos theta and this component become mg sin theta. And this body sliding down means ये जो बॉडी का मोशन है वो आपका इस डायरेक्शन में है. मीन्स बॉडी का जो मोशन है वो ये है. दिस इज द मोशन ऑफ बॉडी. क्लियर? बॉडी नीचे की तरफ आ रही है. So when the body is sliding down in the downward direction, so there comes out of another force which we have discussed, that frictional force. So there is a frictional force which is represented by F. Clear? So this is your case. We have to find the acceleration. So on that body various forces are acting, and from these forces we will find the acceleration of the body. What is the net acceleration of the body when our body is sliding down? So in starting you have to write 2 or 3 lines. What? Let us consider that this is a body of mass m placed on an inclined plane which make an angle theta with the horizontal. Clear? Its weight mg acting downward. Resolve this mg into two component. One is mg cos theta, another is mg sin theta. Means बेटा जो थीटा जिसके साथ एंगल होगा वो हमेशा cos वाला होता है. मीन जो हॉरिजॉन्टल के साथ होगा वो cos का होता है, और ये थीटा तो एंगल भी थीटा होगा. Clear? When body sliding down, another force comes into play, that is a force of friction. So अब यहाँ से कंक्लूजन निकाल लेंगे. हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि this r and this mg both are in opposite direction. Means this r we can write equal to mg because r balance the mg. So from first equation r is equal to mg cos theta. Clear? Next, this is your mg sin theta which is acting in downward direction, and this is your friction force which is acting in upward direction. So both are opposite to each other. So from here what we can write? We can write here कि जो आपका नेट फोर्स होगा, क्लियर, जो आपका यहाँ से अगर हम नेट फोर्स निकालें कि इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा. If we say that कि F is a net force acting on this body, इस बॉडी के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं. mg cos थीटा नीचे की तरफ. अब जो आपकी बॉडी है, एक पॉइंट समझना सबसे इंपॉर्टेंट कि ये बॉडी है ना तो बेटा ऊपर की तरफ. मीन्स अगर ये कोई बॉडी है लाइक दिस, ये r आपका ऊपर की तरफ था और मान लो ये mg नीचे की तरफ. अगर बॉडी इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर की तरफ नहीं उठी, मीन्स बॉडी यहाँ पे नहीं गई, यहाँ पे गैप नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों फोर्स हैं mr और mg ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. क्लियर? ये आपके जो r और mg हैं ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग कि मान लो ये आपकी कोई बॉडी है, क्लियर, ये इसका r था और ये इसका mg था. क्लियर? अगर ये बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस से ऊपर की तरफ नहीं जा रही, ना ही नीचे की तरफ आ रही है, मीन्स देयर इज नो वर्टिकल मोशन. ये बॉडी का कोई भी वर्टिकल मोशन नहीं है. अगर वर्टिकल मोशन नहीं है इसका मतलब ये r ने mg को बैलेंस कर दिया बॉडी अलोंग द सरफेस. अब इस केस में बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करे, ना बॉडी ऊपर जा रही है ना बॉडी नीचे आ रही है, मीन्स
इस डायरेक्शन में जा रही है, यहां से नीचे आ रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर तो मूव कर रही है, लेकिन इस तरह से नीचे जा रही है, ऐसे ऊपर। मतलब जो ये आर था, ये और एम दोनों ने बैलेंस कर दिया। अब यहां पर लिख देता हूं नेट फोर्स ऑन बॉडी, ऑन बॉडी वी से दैट दिस इज फोर्स इज एफ। ये फोर्स आपका क्या है, एफ है। क्लियर। अब ये फोर्स एफ किसके इक्वल होगा? अब इस बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, नीचे की तरफ एमजी है और एफ फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ। अब बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करने मतलब जो आपका ये mg को साइन थीटा है, ये ग्रेटर है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो आपका आएगा mg साइन थीटा माइनस स्मॉल m। क्लियर। एंड प्रीवियसली वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दैट दिस f इज अ फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज अ फ्रिक्शन फोर्स, एंड फ्रिक्शन फोर्स वी ऑलरेडी रिटन एज f इज इक्वल टू दैट इज म्यू r। दिस इज अ लॉ ऑफ फ्रिक्शन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, f इज इक्वल टू म्यू r। सो दैट नेट फोर्स f comes out to be mg sin theta minus mu r, and here we written that mu, here this r is equal to mg cos theta. So f comes out to be mg sin theta minus, in place of mu ऐसे रहेगा, और जो आपका ये r है, this r can be written as mg cos theta. Clear? अब ये होंगे जो ये mu है बेटा, दिस इज अ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कि कोई भी रफ सरफेस है वो फ्रिक्शन ऑफर करेगा, उसका कुछ कोफिशिएंट होता है, उसको हम नहीं करते। अब हमने यहां से क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द ए। तो वी नो दैट दिस एफ कैन बी रिटन एज mg। क्लियर। एंड दिस इज mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो अब मैंने क्या किया, यहां से अंदर से m को कॉमन ले लिया। जब मैं यहां से अंदर से m को कॉमन ले लेता हूं, क्लियर, तो ये m यहां से हट जाएगा। अगर ये m यहां से हट गया, इस m के साथ ये m कैंसिल हो गया, तो योर एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। और अगर हम अंदर से इस g को भी कॉमन लेते हैं, तो योर एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी दिस, द एक्सप्रेशन वाज बी g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो ये आपका टॉपिक था एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी व्हेन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन। तो इसके बाद अगर हम इसको और डिटेल में जाते हैं, अब डिटेल में क्या जाना है, एक बार दोबारा इसको अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि व्हाट वी हैव सीन हियर, व्हाट वी हैव डिस्कस हियर। इसका एक और केस बनेगा कि हमने स्लाइडिंग डाउन बोला था, अगर हम बोलेंगे स्लाइडिंग अपवर्ड तब क्या होगा। अब सिंपल सी बात यहाँ पे ये थी आपका, अगर इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करते हैं, अब हम दूसरा केस डिस्कस करेंगे। दूसरे केस में यहाँ पे आपका था डाउनवर्ड, अगर यहाँ पे आ जाए अपवर्ड तब क्या होगा। क्लियर। तो अगर हम ले लेते हैं फिर से, ये कोई आपका इंक्लाइंड प्लेन है जिसमें हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनता है। क्लियर। यहाँ पे हमने कोई बॉडी रख दी, द बॉडी इज ऑफ मास है। क्लियर। अब इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ करेगा, दिस इज mg। क्लियर। दिस mg इज ऑल इन टू कंपोनेंट, एक आपका ये आ गया और एक आपका ये आ गया। अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सा कोस का है और कौन सा साइन का है। क्लियर। तो अब अगर हम यहां से देखते हैं, ये एंगल थीटा, तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा, व्हिच वी हैव डिस्कस प्रीवियसली। तो ये आपका जो कंपोनेंट बनेगा, ये बन गया आपका mg cos थीटा। क्लियर। उसके बाद आपका ये बन जाएगा, दिस कंपोनेंट बिकम mg sin थीटा। क्लियर। ये mg नीचे कर रहा, तो दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन R। अब बॉडी का, ये बॉडी अपने सरफेस से ऊपर नहीं उठ रही है, सरफेस के ऊपर ही है। इसका मतलब जो आपका ये R है और जो आपका mg cos थीटा, ये दूसरे के बराबर है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहां से पहली इक्वेशन हो जाएगी R इज इक्वल टू mg cos थीटा, पहले की तरह, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब पहले बॉडी स्लाइडिंग डाउन थी, अब अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, वी से दैट कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। क्लियर। ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन की, बॉडी का मोशन उधर है। अगर बॉडी का मोशन उधर है तो आपको पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, अगर मोशन उधर, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन भी आपकी ये होगी। और दूसरा आपका जो आपका यहाँ पे है mg sin थीटा, वो भी इधर की तरफ है। क्लियर। तो अगर इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स की बात करें, इस बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एक इसकी बॉडी को लग रहा है mg sin थीटा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स और mg sin थीटा दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये भी इधर की तरफ है और ये भी इधर की तरफ है। तो जो नेट फोर्स आपका होगा, दैट नेट फोर्स कम्स आउट टू बी mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स। सो F is equal to mg sin theta. In place of F, we can write mu r, where r is the normal reaction, and this r can be written as mg sin theta plus mu as it is. In place of r, we write there mg cos theta. Clear? So this F can be written as ma. Here
m we will take common and g we will take common. Here comes out to be sin theta plus mu cos theta. Clear? This m cancel with this, so a comes out to be g sin theta plus mu cos theta. अब यहाँ पे बात क्या समझनी है, हमने यहाँ पे समझना है कि अगर बॉडी स्लाइडिंग अपवर्ड है तो ये साइन आपका प्लस का आएगा, अगर बॉडी आपकी स्लाइडिंग डाउनवर्ड है मींस अगर अपवर्ड जा रही है तो ये प्लस है, अगर डाउनवर्ड आ रही है तो ये माइनस। तो ये आपका टॉपिक था व्हेन अ बॉडी एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी व्हेन अ बॉडी स्लाइडिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। So this we have discussed in this video. So in next part we will discuss more application about the acceleration of body when it's sliding on any other surface. Next we will discuss pull and push. This we have already discussed in the previous part कि easier pull push का हमने concept किया था। अब इसको हम न्यूटन के लॉ से कैसे करेंगे और एक्सेलरेशन से कैसे करेंगे वो हमने देखना है। तो सबसे पहले दिस इज दैट कि दिस इज अ बॉडी, ये कोई बॉडी है, क्लियर, ये आपकी कोई बॉडी थी, इस बॉडी को हमने पुल कर दिया। इसलिए सबसे पहले हम कहते हैं कि दिस इज अ बॉडी एंड इट्स मास mg एक्टिंग डाउनवर्ड एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन व्हिच एक्टिंग अपवर्ड। अब जो बॉडी है आपकी इस साइड में जा रही है या बॉडी इस साइड में जा रही है, बॉडी ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, इसका मतलब जो बॉडी का वर्टिकल मोशन है वो नहीं है। अगर बॉडी का वर्टिकल मोशन है इसका मतलब आर ने इस mg को बैलेंस कर दिया। तो हमने क्या कहा कि अब किसी ने इसको पुल कर लिया विद दिस इज p, क्लियर, किसी पर्सन ने इसको पुल किया है इस तरफ, मींस बॉडी का मोशन उस तरफ का हुआ, मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्लियर। अब हमने क्या किया, अगर ये p की डायरेक्शन तो वी विल रिजॉल्व दिस p इनटू टू कंपोनेंट, दिस इज वन कंपोनेंट, another is this component. So if this angle we say that theta, so this component become p cos theta and this component become p sin theta, clear. So afterward if we say that if this mg acting downward direction, r in upward direction and this p sin theta is also in upward direction, so if we want to find the net, so from here we can write that mg इज इक्वल टू, बॉडी ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, इसका मतलब जो mg है और जो r है और जो p sin थीटा है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो दिस mg कैन बी रिटन एज p sin थीटा प्लस r। वी हैव टू फाइंड दैट कि व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय द बॉडी। सो इफ वी वांट टू फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स वी नो दैट F इज इक्वल टू म्यू r, क्लियर। सो इफ वी नो द वैल्यू ऑफ r वी कैन इजीली फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। So from here, if you want to find the r, so this r and this p sin theta came that side, so this become mg minus p sin theta. So this is the value of r, clear। अब इसके बाद अगर हम f निकालना चाहते हैं, mean how much the friction force offered by the body, so that f can be written as mu into, maybe we will put the value of r. What is the value of r? The value comes out to be mg minus p sin theta. So आपको यहाँ से क्या लग रहा है कि जो mg था this is the weight of the body, इस वेट में से कुछ माइनस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, p sin थीटा। अगर इस वेट में से p sin थीटा कम हो रहा है, इस बॉडी का वेट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जो बॉडी है उसको आपको पुल करना क्या हो रहा है, आसान है, क्लियर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि बॉडी को पुश करना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू पुल। तो बेटा इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पुल वी हैव डिस्कस, नाउ वी विल डिस्कस पुश कि व्हेन वी पुश अ बॉडी इज इट्स वी कैन से दैट वेट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर वेट डिक्रीज करेगा तो उसको इजी है, अगर वेट इंक्रीज कर जाता है तो उसको डिफिकल्ट है पुश करना। सो अगेन वी विल टेक एग्जांपल, वी से दैट दिस इज अ बॉडी। तो पहला आपने वही करना है कि बॉडी है तो इसका यहाँ पे जो mg होगा वो एक्ट करेगा नीचे की तरफ, अगर mg नीचे की तरफ एक्ट करे तो देन नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। एंड वी से दैट कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पुश, जी हमने इसको पुश कर दिया तो इस पुश को हम यहां पे ले आएंगे ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पुश, क्लियर। तो ये आपका पुश है, पहले पुल था और अब आपका क्या है, ये पुश है। अगर हम कह देते हैं दिस एंगल इज थीटा,
मीन्स जो आपका एंगल है ये थीटा है। क्लियर? तो अगर आपका वो एंगल थीटा तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, दिस एंगल आल्सो बिकम थीटा। क्यों? क्योंकि दीज आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल, कि जो पुश है उस केस में जो एंगल बन रहा है थीटा बन रहा है। सो नाउ वी विल रिजॉल्व दिस पुश इनटू टू कंपोनेंट, एक पुश का ये कंपोनेंट हो गया और एक पुश का आपका ये कंपोनेंट हो गया। अब ये थीटा है तो ये बन जाएगा आपका पी कोस थीटा और ये बनेगा आपका पी साइन थीटा। क्लियर? जो थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो आपका क्या होता है, द थीटा कंपोनेंट बिकम कोस एंड जो आपका दूसरा है वो बनेगा साइन। इसको एक बार दोबारा देखते हैं यहां से, यहां पे आपका ऐसे करेंगे। क्लियर? तो इसको रिजोल्व करते हैं दोबारा से एक बार, कि अगर हम कह देते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ देखना है, बट एंगल पहले हमने ये नॉर्मल रिएक्शन का एंगल देखा था कि अगर आपका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो है थीटा बना रहा है, पुल सॉरी पुश। क्लियर? तो अगर ये एंगल थीटा है तो फिर बेटा ये एंगल आपका थीटा होगा। इस चीज को आप करेक्ट कर लेना। क्लियर? पहले हमने ये एंगल ले लिया था, ये एंगल आपने नहीं लेना, ये तो आपका एंगल वर्टिकल के साथ है, कि जो आपने डायरेक्शन देखनी है वो आपने हॉरिजॉन्टल के साथ देखनी है। सो इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस बिकम P cos थीटा एंड दिस इज बिकम P sin थीटा। अब इसकी वजह से तो बॉडी आपकी आगे की तरफ जाएगी। क्लियर? अब हमने क्या देखा कि जो बॉडी है उसका कोई अपवर्ड मोशन नहीं है, बॉडी अलोंग द सरफेस है। इसका मतलब जो ये R है और आपके जो mg P sin थीटा है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तभी बॉडी ऊपर की तरफ नहीं गई। तो यहां से आपको क्लियर हुआ कि जो R है दैट बिकम P sin थीटा प्लस mg। Clear? And we also know that कि F is equal to mu R. This is the law of friction. This is the law of friction. So F can be written as mu into में P sin theta plus mg. तो अब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके केस में mg के अंदर P sin theta ऐड होगा। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया। अगर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया तो इस बॉडी को आपको पुश करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू पुल। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये हमने अभी डिस्कस किया। जो आपका पुल था उस केस में आपका जो म्यू आया था P sin थीटा माइनस mg था, सॉरी mg माइनस P sin थीटा, दिस इज देयर mg माइनस P sin थीटा मींस वेट में से कुछ माइनस हो रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स कम आया। इस केस में आपका वेट में कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है। और अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा वी फेस डिफिकल्टी फॉर मूविंग अ बॉडी। उसके बाद आपके आता है फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इवन, कि जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए जरूरी क्यों है। बेटा फ्रिक्शन हमारे लिए फायदेमंद भी है, फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसान भी है। सबसे पहले अगर हम फ्रिक्शन के नुकसान देखते हैं क्या, कि फ्रिक्शन की वजह से बेटा लॉट्स ऑफ एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट। कि जब कोई भी बॉडी पार्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट की वजह से बहुत सारी एनर्जी का लॉस होता है। मशीन की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाती है, बॉडी के जो मोशन है वो भी कम हो जाता है। मीन्स अगर एयर फ्रिक्शन ना हो तो आपकी जो मोटर कार है या जो गाड़ियां हैं वो ज्यादा स्पीड से चलेंगी। ड्यू टू एयर फ्रिक्शन उनकी जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है। अब आपने एरोप्लेन को देखा होगा तो एरोप्लेन की जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है टू मिनिमाइज द एयर फ्रिक्शन। बट ऑन दी अदर हैंड फ्रिक्शन इज नेसेसरी। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम अर्थ के ऊपर चल नहीं पाएंगे। इफ फ्रिक्शन नहीं होगा देन वी आर नॉट एबल टू राइट ऑन द बोर्ड। कि जो आपका पेन है और जो बोर्ड है उसके बीच में फ्रिक्शन है देन वी आर ओनली एबल टू राइट। मीन जो फ्रिक्शन है वो आपका एक नेसेसरी पार्ट है लाइफ का। उसके कुछ फायदे भी हैं, उसके कुछ नुकसान भी हैं। ये आपकी बुक में रिटन है, उसमें से आपने रीड करना है। पहले भी आप इसको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो सबसे पहला है कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो फ्रिक्शन की वजह से लॉस्ट हो जाती है, पहला पॉइंट, क्योंकि हीट की फॉर्म में। ये आपने देखा कि जो मशीन अगर कुछ देर तक काम करती है तो वो हीट अप हो जाती है, गर्म हो जाती है। उसका रीजन क्या है कि जो वेरियस पार्ट है वो एक दूसरे के अराउंड स्लाइड करते हैं या वो रब करते हैं, उसकी वजह से वहां पर हीट निकलती है। क्लियर? और जो मशीनों के अंदर बेटा डैमेज होता है, जो टूट फूट होती है, वो भी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होती है। क्लियर? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही बॉडी की स्पीड डिक्रीज होती है। क्लियर? तो ये कुछ नुकसान है फ्रिक्शन के। फायदे क्या है, हम चलते हैं, हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। क्लियर? तो ये सारा फ्रिक्शन फोर्स की वजह से है। क्लियर? तो कोई भी जो कोई मूविंग पार्ट है वो अपनी जगह पे है, अपनी जगह पे घूम रहा है, वो फ्रिक्शन की वजह से है।
आपने देखा कई मशीन होती है उनके ऊपर बेल्ट चढ़ी होती है, वो कई बार वो बेल्ट उतरने लग जाते हैं। रीजन क्या हुआ कि अगर फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस हो जाएगा तो वो स्लिप करके उतरने लगे, फॉल कर जाते हैं। जैसे हम अगर बारिश उसके बाद अगर हम ग्राउंड पे चलते हैं तो स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्यों? फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया। तो ये कुछ पॉइंट थे कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी, फ्रिक्शन इज इविल फॉर अस। अब यहाँ पे कुछ मेथड है कि हाउ वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो बड़ा सबसे पहला तो फ्रिक्शन है कि बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। और दूसरा मेथड है कि अगर हम किसी बॉडी को स्लाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपका एक डायग्राम बनाता हूँ कि आपसे पूछता हूँ किस केस में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। क्लियर? ये एक बॉडी है और दूसरी बॉडी ये है, दूसरी बॉडी आपकी ये है। क्लियर? अब ये होगा यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन और ये आपका होगा रोलिंग फ्रिक्शन। तो अगर हम बात करें कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है रोलिंग फ्रिक्शन से, तो वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। मींस अब रोलिंग फ्रिक्शन कैसे होगा कि बाय यूजिंग द बॉल बेरिंग्स। अगर किसी चीज को स्लाइड करना है, अब उसको अगर बॉल बेरिंग डाल दिए जाए तो वो बॉडी रोल करेगी, और बॉडी को रोल करना आसान है एज कंपेयर टू स्लाइड। सो दिस इज फ्यू discussion about the friction, how it is necessary, how it is beneficial for us, how is disadvantage of friction for us, and how will we reduce friction, कि फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में इसके बाद। So now next bit I will discuss about the circular motion. Next topic is circular motion. We come across many in day-to-day life where we see a circular motion, like a fan rotating, that is circular motion. So when a body moves in a circular path, so its motion is said to be the circular motion. Clear? So previously we have discussed some terms about the linear motion. So now we will discuss about a few terms of circular motion. Clear? The first term is angular displacement. So the first term is angular displacement. Clear? What is angular displacement? Previously in the linear motion we said that it is the shortest distance from the initial position to the final position. So what is angular displacement in case of circular motion? So if we say that this is an object, it is center and having radius r. Clear? It is moving in a circular path. ये circular path में घूम रहा है आपका. So what is angular displacement? So if we say that at any time object is at A, after some time the object reach at point B. Clear? So this is known as angular displacement. So what is angular displacement? The angle subtended at the center, angle subtended by an object which is moving in a circular path at the center of axis of rotation. कि जो एंगल बनेगा सेंटर एक्सिस बॉडी में सर्कुलर पाथ। क्लियर? ए पे थी, बी पे चला गया, तो जो ये आपका एंगल है वी से दैट थीटा। सो दिस थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? द एंगल सबटेंडेड एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कि जो आपका एंगल सबटेंडेड होगा कि द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय अ पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कि जो भी आपका मूविंग पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, क्लियर, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर जो एंगल बनाएगा उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो इफ दिस इज आर, वी से दैट दिस इज एल। आर रिलेशन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज आर, वी हैव अ रिलेशन थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। क्लियर? ये हमने रिलेशन पहले की। जो यहाँ पे थीटा है, दिस थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है, क्लियर, और ये एल आपकी लेंथ ऑफ द आर्क, मींस जो आपकी ए बी है वो आपकी एक आर्क है। अब आर्क की लेंथ का फॉर्मूला किया था क्लास 10th के अंदर, दैट इज 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 360। क्लियर? अब हमने यहाँ पे पुट करना है। सो हमें पता है एंगल थीटा बना, तो थीटा वी पुट इन दिस इक्वेशन, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा डिवाइड बाय 360 और नीचे आर है। तो इस आर के साथ ये आर कैंसिल हो गया, इस थीटा के साथ थीटा कैंसिल हो गया, तो यहां से आएगा 2 पाई इज इक्वल टू 360। तो एक रिलेशन आ गया, दिस इज 2 पाई रेडियन, क्लियर, इज इक्वल टू 360। मींस जो आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इट इज मेजर्ड इन रेडियन। इसको हम रेडियन में मेजर करेंगे जो हमने पहले डिस्कस किया है।
क्लियर, रेडियन इज एंगल्स सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ एन सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस, जो हमने पीछे डिस्कस किया है। तो ये थी आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम रेडियन में मेजर करते हैं। तो आपके यहाँ पे रिलेशन आ गई कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360। यहाँ से फिर हमने रेडियन की रिलेशन निकाली थी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। क्लियर, इसको हमने सोल्व कर लिया। तो यहाँ से अगर हम इसको निकालते हैं दैट इज 180 डिवाइड बाय पाई। ये रिलेशन है कि 1 रेडियन आपका 180 बाय पाई की। तो नेक्स्ट आपकी आएगी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? क्लियर, उसको देखते हैं। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? तो एंगुलर वेलोसिटी भी बेटा रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। क्लियर, जो आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रेशियो होगी, क्लियर, टू द टाइम, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है? अभी स्पीड और वेलोसिटी में जो आपको फर्क है, अगर स्पीड है तो वहां पे डायरेक्शन नहीं है, अगर वेलोसिटी है तो वहां पे डायरेक्शन है। सो एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। क्लियर, दिस ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। ये थीटा आपकी क्या थी? दिस इज डिस्प्लेसमेंट, विच डिस्प्लेसमेंट है? एंगुलर डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर, तो ये आपका था एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड, जिसको हम कह सकते हैं। क्लियर, अब अगर हम इसको समझते हैं कि एंगुलर स्पीड कैसे हुई है, कैसे आपका ये आया है, तो वही बात है कि अगर हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि व्हेन टाइम t इज 0, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ए पॉइंट। आफ्टर टाइम t, व्हेन टाइम बिकम t इक्वल टू t, तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, तो दिस पॉइंट इज b। और जो यहाँ पे एंगल बना है दैट इज डेल्टा थीटा। क्लियर, तो यहां से यहां तक का टाइम आपका हो गया, ये t था, यहाँ पे t 0 था, तो ओमेगा कैन बी रिटन एज डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय t माइनस 0, दैट इज डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय t। तो दिस इज अ रिलेशन। अभी एंगल छोटा है तो यहाँ पे आएगा डेल्टा ओमेगा। तो जो एंगुलर आपकी स्पीड होगी या जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो भी आपकी स्मॉल होगी। अब आगे आता है आपका टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, कि एक रोटेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। अब हमने यहाँ पे एक रिलेशन निकालनी है, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टाइम और ओमेगा के बीच में रिलेशन निकालनी है। अब हमने जो टाइम पढ़ा है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, कि एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है। क्लियर, दैट इज टाइम पीरियड। सो इफ वी से दैट दिस इज अ सर्कुलर मोशन। क्लियर, जब हम सर्कुलर पाथ में यहां से चलेंगे ए पॉइंट पे और दोबारा ए पे फिर, तो इस केस में जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो बनेगा 360 आपका। क्लियर, क्लियर, जब हम एक सर्कल पूरा कर देते हैं तो आपका 360 एंगल बनता है। तो आपका जो ओमेगा होता है दैट इज वी नो दैट थीटा बाय टी। क्लियर, जो आपका ओमेगा होगा वो होगा थीटा बाय टी। क्लियर, हमने कह दिया कि पूरा राउंड लगाने में टाइम लगा आपका टी लगा है। क्लियर, और 360 की हम रिलेशन कह रहे 360 जो डिग्री था वो आपका था 2 पाई रेडियन के इक्वल। क्लियर, तो अब थीटा कितना आ जाता है? आ जाएगा 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय टाइम कैपिटल टी है, तो ओमेगा आपका जो आ जाएगा दैट इज 2 पाई बाय टी रेडियन। क्लियर, अब आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसके बाद क्या है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने देख रहे हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ टाइम आ बॉडी। जो फ्रीक्वेंसी आपकी होती है दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, और यहाँ पे 2 पाई इंटू में अगर 1 बाई टी कर दूंगा तो दिस 1 बाई टी कैन बी द फ्रीक्वेंसी। मींस जो आपकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है आपकी फ्रीक्वेंसी। अब व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन दैट इज टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अब उसमें एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगा वो आपकी क्या थी? दैट इज योर वी कैन से दैट टाइम पीरियड। अब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, कि जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड। अब हमने पहले डिस्कस किया था टाइम पीरियड क्या था? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, मींस एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा वो आपका था टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड इन 1 सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर कितनी रेवोल्यूशन होगी उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। मींस नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रोटेशन मेड इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी और टाइम है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हमने यहाँ पे निकाला था ओमेगा, ओमेगा तक 2 पाई बाय टी के इक्वल, तो हमने इस 1 बाई टी को लिख दिया न्यू। तो अब आपका जो ओमेगा दैट इज 2 पाई न्यू।
क्लियर। तो एक रिलेशन हमने कर ली, यहाँ पे दो रिलेशन कर ली थी, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, क्लियर। और ओमेगा का एंगल 2π न्यू, मीन्स इस t को हम 1/t को हम न्यू लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये आपका था बेसिक टर्म्स थी जो हम यूज करते हैं किसके अंदर, इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगी, क्लियर। नाउ वी विल सी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड इन द एंगुलर वेलोसिटी। सो वी विल कंप्लीट इट एंड सी इट कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। So again we will draw a diagram, means we have to find the relation of v and omega। इस v और omega में हमने रिलेशन निकालनी है, ठीक है। इसको देखते हैं क्या इसकी रिलेशन बनेगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन द v एंड ओमेगा। v is linear velocity, omega is angular velocity। सो हम सबसे पहले कहते हैं दिस इज अ सेंटर, कोई पार्टिकल था वो a पॉइंट पे था, क्लियर, एंड इट्स रेडियस इज r। आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल रीच, आफ्टर टाइम t, वी से दैट आफ्टर टाइम t जो आपका पार्टिकल था या टाइम डेल्टा t की फॉर्म में आपका b पे पहुंच गया, क्लियर। और द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज रिटन बाय डेल्टा थीटा, क्लियर। डेल्टा टाइम में डेल्टा थीटा से एंगल सबटेंडेड किया, तो ये रेडियस r है। वी से दैट कि दिस AB इज इक्वल टू डेल्टा s, मींस जो a से b तक का डिस्टेंस है ये r की जो लेंथ है वो डेल्टा s है, क्लियर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे ओमेगा। तो वी ऑल नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा t, और सिंपली वी कैन राइट है डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय t। ये आपकी इक्वेशन 1 है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, क्लियर। अब अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं, दिस v कैन बी रिटन एज, अब पार्टिकल गया था a से लेके b तक, तो इसके डिस्प्लेसमेंट का डेल्टा s है डिवाइड बाय, क्लियर। और जो टाइम लगा उसको यहां तक लगा टाइम t, और डेल्टा t इज राइट है, क्लियर t आ गया। तो दिस इज द लीनियर वेलोसिटी एंड दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दैट। तो अभी हमने लिखा था थीटा इज इक्वल टू l बाय r, ये एक रिलेशन लिखी है, क्लियर। अब इस केस में जो आपका थीटा है, दिस थीटा कैन बी रिटन एज डेल्टा थीटा, और जो ये l है दिस इज डेल्टा s डिवाइड बाय r, क्लियर। तो अब यहां से अगर हम यहाँ पे आप डेल्टा टी लिखना, डेल्टा टी लिखो, ऐसे रखना चाहिए। अब यहां से आप क्या करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस, क्लियर। अब यहां से जो डेल्टा एस आएगा आपका, दैट डेल्टा एस कैन बी रिटन एज डेल्टा थीटा इनटू में आर, क्लियर। अब इस जो डेल्टा एस की आपने वैल्यू निकालनी है, इस वैल्यू को आप यहां पुट कर दो इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इनटू में आर, क्लियर, डिवाइड बाय टी, क्लियर। ये हमने इस डेल्टा एस की वैल्यू को पुट कर दिया आपका इस इक्वेशन के अंदर, क्लियर। तो v इज इक्वल टू, आप इस डेल्टा थीटा डिवाइड बाय टी, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय टी, दिस t कैन बी रिटन एज कैपिटल T, क्लियर। दिस फुल कैन बी रिटन एज ओमेगा। तो v कम्स आउट टू बी ओमेगा इनटू में r, और v कैन राइट हियर कि जो आपका v होगा इसको याद रखना था, दैट इज r ओमेगा, मींस जो आपकी लीनियर वेलोसिटी होगी वो कहीं ना कहीं एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड करेगी, बिकॉज कोई भी पार्टिकल जब यहाँ पे है इट वांट टू मूव इन स्ट्रेट पाथ, बट ड्यू टू सेंट्रिपेटल फोर्स इट ऑलवेज रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ। मींस एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी, अगर इस पार्टिकल में छोड़ दो तो सीधा जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा फोर्स एग्जिस्ट करता है जो इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए टेंड करता है। अगर इस फोर्स को हम रिमूव कर दे, दिस पार्टिकल स्टार्ट मूविंग स्ट्रेट। सो ये आपकी कुछ रिलेशन थी, कुछ टर्म्स थी रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन, क्लियर। तो ये आपका टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कुलर मोशन के कुछ और केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।